AM/FM adaptation, mitigation, future management reminds us that resilience is not just about weathering the storm, it's about mitigating risks and shaping a sustainable future together. Moving on, I introduce the topic of the first panel, the climate frequency. Climate change is disrupting rural communities, affecting agriculture, water availability, and daily life. Many remain unaware of the crisis. How can radio drive adaptation, mitigation, and preparedness? The panel explores the contribution of radio professionals in amplifying awareness and making the invisible visible. For this panel discussion, I would like to invite Mr. Shubhashish De, Executive Director, Solutions for Sustainable Living, on the stage. Please, sir. Mr. Vijendra Sajwan, Assistant Director, Programming, All India Radio. Mr. N.A. Shah Ansari, Radio Namaskar, Odisha. Ms. Gayatri Mahaske from MVK Pravara, Ahmednagar. R.J. Purab from Red FM. The session will be moderated by Ankur Goswami of Smart Team. Let me take a moment to introduce our panelists. Shubhashish De is the Executive Director of Solutions for Sustainable Living and a leading expert in climate change mitigation, adaptation, and resilience. With over 20 years of experience, he serves on high-level committee, including SEBI's Advisory Committee and Niti Aayog's Climate and Energy Modeling Forum, shaping India's climate finance and sustainability policies. Vijendra Sajwan, Assistant Director of Programming at All India Radio, has extensive experience in program production and policy management. He currently oversees Kisan Vani, a flagship radio program broadcast across 97 stations in collaboration with the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, serving India's farming community. N.A. Shah Ansari is a human rights activist, journalist, and community media pioneer with over 34 years of experience. As the founder of Radio Namaskar and a key leader in India's community radio movement, he has championed media as a tool for social change, earning multiple national and international accolades. R.J. Purab, the prankster who turns your mornings into a laughter riot, hosting morning number 1 on Red FM Delhi from 7 a.m. to 11 a.m. He's a wake-up call you actually enjoy, blending mischief, humor, and energy to kickstart your day with a smile. Ankur, over to you now. नमस्कार साथियों, मैं अंकुर गोस्वामी द रेडियो फेस्टिवल की इस खास पैनल चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम सभी के जीवन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। हमारा पैनल का विषय है जलवायु परिवर्तन और रेडियो की भूमिका, द रोल ऑफ रेडियो इन एम्प्लीफाइंग क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस। जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ वैज्ञानिकों, सरकारों या शहरों का ही मुद्दा नहीं है। ये गांवों, कस्बों, खेतों और जंगलों को भी प्रभावित कर रहा है। बीते समय में हमने देखा कि कैसे बदलता मौसम, बाढ़, सूखा और जंगलों में आग जैसी घटनाएं हमको विचलित करती रही हैं। इसलिए इस विषय पर बात करना महत्वपूर्ण है और सवाल आज हमारे सामने ये है कि क्या इन विषयों पर जानकारी आम लोगों तक सही जानकारी पहुंच रही है? क्या इस विषय पर हम अपने आसपास के समाज में चर्चा कर रहे हैं? इसीलिए आज का ये पैनल खास है। हमारे साथ न सिर्फ वो विशेषज्ञ हैं जो इस विषय की सही जानकारी रखते हैं, तकनीकी पहलुओं को समझते हैं, बल्कि वो साथी भी जुड़े हैं जो लगातार इस विषय पर रेडियो के माध्यम से इस बात को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाते रहे हैं। तो इस बातचीत की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं सुभाषिश जी के पास जाना चाहूँगा और उनसे निवेदन करूँगा कि वो इस चर्चा के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पे अपनी बात रखें और हमें यह बताएं कि कैसे जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक दूर का विषय नहीं है, यह हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हुई एक समस्या है। एंड इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू एनवायरमेंट, इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर हेल्थ, आवर जॉब्स और सेफ फूड प्राइसेस फॉर दैट मैटर।
Over to you, Subhashish ji. Thank you. I'm not as good as in Hindi as he is, so I will give my response in a mix of Hindi and English. So just bear with me on that. Um, when we talk of climate change, jalvayu parivartan, often it's an abstract concept for many of us. Why abstract? Because though it is apparent that the environment in and around us, but the science behind why this is happening is often not known to every one of us. And for ages it has remained as something which has been a heated discussion and deliberation, mostly in the scientific community, maybe within the policy making system, but not so much has percolated on the ground in terms of understanding of the rural community. People do understand that the way of life they had been living across centuries are changing, but the reason of why the changes are happening are often not known. And there is a direct implication of that, because if you don't know why the changes are happening, you might not be able to come up with remedial measures. And that has an impact on the life, the livelihood of the people who are being impacted, and also on the kind of food preference they had. Why I am saying so? A very simple example is that in areas where it has to be historically arid, and I take the example of say Ladakh. In recent past, you might have heard the flooding in Ladakh, the greening of Ladakh, the similar instances we have seen in Western Rajasthan. What it also implicates that in one way, the greening is good for the community, but also it means that it is changing the biodiversity and the ecosystem of the people who are living there, and that has a bearing on the life and livelihood of those people. In last 4 months, after I left my last job and started my own organization, I took the onus of myself that I should not be sitting in my office, but need to see what is happening across the country and go to the hinterland and try to find out or assess the real impact of climate change. So what I did, I took my car out, I traveled from Delhi till West Bengal and came back and went towards Rajasthan, went till Jaisalmer, came back and went down to Madhya Pradesh and covered almost 7,000 to 8,000 kilometers in the process. That gave me a unique understanding of that climate change is not a mere academic discussion anymore. I have seen the flooding happening in Varanasi. The ghats had been completely submerged, and it happens every year, but this year the destruction had been higher. In Thar Desert, there are water bodies which has been created, and when I asked the hotelier that is it a regular phenomena, they said no, this time the flooding was high, and then there are water bodies. If you had traveled to Thar during winter, you might have seen that there are a lot of green plants which has cropped out of the desert. And I was like telling my wife that if we travel to Thar maybe 5 years down the lane and if it keeps on continuing, we might have to search for Thar Desert the way people who want to go and see northern lights nowadays have to search for the northern lights from happening. So these are realities in life, and when those realities happen, the way the people had been living, जो लोग वहाँ पे रहते थे, उनकी जो community है, उनकी जो व्यवस्थाएं है, वो change हो जाता है. And since you don't know why it is happening, the ability of the people to adapt to that changes, and what it also translates into migration to areas where they can get those alternate livelihood. And an alternate livelihood would be, for many of them, would be working as laborers in cities or working in facility management, doing sweeping and those manual jobs, what we say as soft services.
situation is dire, but there are still time to revive, and the ownership is on a lot of us. And I see communication play a critical and important role there, because I have already said that people are feeling the changes happening, they are seeing the changes happening in and across us, but they don't know the reason of those changes happening, and they can't come up with remedial measures. Maybe during the discussion we might also speak about some examples of community-based resilience project. And you will realize that many of those had been driven by the government, and something coming out from the ground, bottom up, has been limited, or if even they have happened, they have not been replicated, and often the case is that the knowledge base which should have been created has not been created. Radio plays a critical role there. We have seen during COVID the role of community radio and FM stations did in terms of percolating the knowledge to the bottom of the pyramid, and that is maybe one of the reasons that India, being such a populated country with a population of 1.4 billion people, had, I would say, per capita lesser death than countries in the global north. And I strongly believe that radio played a critical role there. I'll pause here, and maybe during the discussion we can take the discourse to the next level. Thank you. Thank you, Subhashish. Subhashish rightly illustrated the need for local level interventions when we speak of climate related preparedness. I'm good. So, next I would like to ask Vijayan sir, that sir, at times it is very difficult for common people to understand the technicalities of climate change, और जलवायु परिवर्तन को कम्युनिकेट करने की जो भाषा आमतौर पे यूज की जाती है, या तो वो बहुत टेक्निकल होती है, या उसे एक भयावह खतरे की तरह दिखाया जाता है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जल स्तर बढ़ रहा है. तो इस पे आपका क्या सोचना है कि आम भाषा में, रोजमर्रा की भाषा में इस बात को कम्युनिकेट करने का कितना सिग्निफिकेंस है, और रेडियो इसमें क्या भूमिका निभा सकता है? Thanks, Ankur. First of all, let me extend my hearty congratulations to Team GRF 25, UNESCO, Ministry of Information and Broadcasting, and all the stakeholders present here for having organized such a beautiful event this morning, and the Director General of All India Radio for having given me this opportunity to share my views and experiences on this burning topic. I'm particularly gratified that we had amongst the audience enthusiastic youngsters, and they are radio buffs, and it gives me a reassurance that radio is still not done and dusted. So hopefully radio will survive. It's very pleasing to see the youngsters over here. Having said that, as Ankur had very rightly said, radio has a critical role to play in disaster management, climate change, climate frequency, and all. I come from the headquarters of All India Radio at New Delhi, and I'm privileged to be heading the farm sector broadcast of the network on the national level. I'm also privileged to be looking after a flagship scheme of the Union government, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, who are running almost about 6 decades old Kisan Money project, which is dedicated channel for the farming community of the country. Currently, we are broadcasting dedicated to 97 local radio stations, far-flung stations. You'll be interested to know that All India Radio, in collaboration with the Ministry of Agriculture, is broadcasting dedicated farm sector programs from extreme northeast, Mokokchung. I hope many of you must have heard of the name. Ah, great, you come from northeast. That's in Nagaland, the far northeast corner of the country. We have a presence there. We have a significant listenership of farming audience there. Then on the west we have Godhra. On the towns south we have Nagarkoil in Tamil Nadu, and on the up north is Leh. There's a difficult terrain over there, and still radio has a presence. Having said that,
I would just say that given the critical significance of climate change, I hope everybody of us knows that there is a situation at hand which needs to be addressed immediately, instantly. We all know what's climate change. Out here in cities, we know climate change is all of us, is upon us. We are feeling the heat right in mid of February. Earlier used to be snowfall in the hills. No more snowfalls. Kedarnath, Badrinath didn't have any snowfall this year, as substantial as it used to be. You go there, the naked mountain peaks are all telltale stories of what's happening with us. As far as the rural communities are concerned, women are concerned, poor are concerned, who are the most vulnerable segments of the society, they feel the hardest pinch of it all. Out here, we also feel there is electricity crisis, ACs on, the methane emissions, the enteric fermentation, the release of methane gas into the 30% of methane emission in the society in India's environment is thanks to the dairy sector. So given all these things, All India Radio, as part of the collaboration with Ministry of Agriculture, we have embarked upon the Honorable Prime Minister's ambitious scheme of nutrition safety, nutrition security, along with sustainable agriculture. I'll just give me some, just about a couple of minutes. I'll give you an instance of the Honorable Prime Minister's initiative, which was recognized by the United Nations in the year 2023. That was recognized as International Year of Millets. I hope you will now be agreeing with me that millets constitute the most nutritious food on earth. United Nations has recognized the significance of millets in the sense that it is not only nutrition savvy for most of us, also beneficial for the farmers, and also it's highly cost effective. The farmers don't need to put in any pesticides, any chemicals, any fertilizers. Moreover, it doesn't need that much extra water that we are draining out on crops like rice and all. So I would request you to all of you of the audience, can you come up with just one word answer to the challenge that we are facing? A wild guess. Although I know this gigantic problem cannot be solved in just simple words, but still I feel there is one word which kind of summarizes the whole scenario and can be best solution ahead. That's the climate action. Can anybody of you give me a wild guess? Just one word answer. Any of you? Any students of environment, any students of maybe engineering or maybe technology? Just one word. We have I a lot of just need students one here. word solution to environment crisis that's upon us. Although I know words cannot, substitute for action, climate action, but still, that's the root and the soul of all climate action that's expected of all stakeholders, including the broadcasters, the radio programmers. What's that? That's two words. I need one. Again, okay, that's good enough. But just awareness won't do unless you do some action. I think technology is what is the key solution to our climate action. Now you'll say how. Let me tell you, any climate action that is, incumbent upon all stakeholders, broadcasters, farmers, maybe the policy makers, bureaucrats, governments, international organizations. I'll keep the geopolitics of environment aside for a moment. But technology is one solution which can help us out. I hope some of you will agree with me. Now, technology is upon us, all of us. The youngsters would know AI. We have artificial intelligence. We have blockchain. We have big data. All these technologies are now utmost necessary to act upon climate action, whether you agree or not. Now, it is up to us. We are mediators, we are broadcasters, we are radio guys. We have to take all these technologies to the last man out in the fields, the farmer. And let me tell you, of my own experience, we have been conducting workshops all across the country. I have seen farmers who are now revolutionary leaders of the climate action. Now, women farmers, especially in the Northeast, I've been to Meghalaya, Manipur, and there women farmers are doing turmeric farming with high-tech fields. They have installed sensors based on AI, data, and even remote sensing.
So forget about the fact that the lower end farmer will not be tech savvy. It is up to us to take the technology to the farmer through the mobile, and the government is also supporting in this way. So I think technology could be one way out. That's all I have to say for this session. I'll take a pause. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for enlightening us about the steps that All India Radio has been taking in the past years. And you rightly mentioned that the impacts of climate change will be mostly felt by the most vulnerable communities. और क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जाहिर है कि पर्यावरण संबंधी जितनी भी आपदाएं इस देश में आएंगी, वो सबसे ज़्यादा हमारे जो गांव के कस्बों के किसान हैं और खेती पे निर्भर लोग हैं, उन्हीं पे सबसे ज़्यादा उसका असर देखने को मिलेगा। तो इस बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं अब चाहूँगा गायत्री जी के पास जाना, जो अहमदनगर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी हैं और लगातार पर्यावरण संबंधित मुद्दे को उठाती रही हैं। सर ने अभी मेंशन किया कि बहुत जगहों पर जहां पहले बर्फबारी होती थी, स्नोफॉल होती थी, ओलावृष्टि होती थी, वो अब नहीं हो रही है। पर अब कुछ ऐसी जगह हैं जहां पहले ओलावृष्टि और स्नो नहीं होती थी, अब वहां पे हो रही है। तो ये जो बदलाव है उसको हम समझते हैं गायत्री जी के माध्यम से कि लोकली इस तरह की चीज जो पहले नहीं होती थी और अब हो रही है, वो कैसे कृषकों को और खेती को अफेक्ट करती है। गायत्री जी। धन्यवाद सर। मैं गायत्री, जैसे सर ने बताया, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, महाराष्ट्र के, जिसे पहले अहमदनगर जिले के नाम से जाना जाता था। हमारा रेडियो 2009 से है, कृषि विज्ञान केंद्र का रेडियो है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स हम फार्मर्स के लिए चलाते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र का रेडियो है, और जो अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट है ये बेसिकली आवर्षण प्रवण क्षेत्र में आता है। तो आवर्षण प्रवण क्षेत्र में आने के कारण कहीं इलाका ऐसा है जहां ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है, और इसी डिस्ट्रिक्ट का कुछ भाग ऐसा है जहां बारिश होती ही नहीं या तो बहुत कम होती है, वहां सिर्फ एक क्रॉप होता है जो बारिश के आधार पर किया जाता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जब हम रेडियो पे इस बारे में प्रोग्राम चलाते हैं, तो हमने फार्मर्स के लिए कुछ स्पेशल स्लॉट सिलेक्ट किए हैं, जिसमें कृषिवाणी हमारा एक स्लॉट है। और जहां तक अभी इस पैनल पे चर्चा चल रही है कि अचानक होने वाले बदलाव और उसका अपनी खेती के साथ जो नुकसान किसान भाइयों को फेस करना पड़ता है, ये बड़ी आपत्ति है सभी किसानों के लिए। जहां तक हम अपने बारे में या सर्विसमैन के बारे में सोचे तो उनके लिए ठीक है, आज का दिन डिस्टर्ब हो गया, हेवी रेनफॉल वगैरह हो गया, लेकिन एक फार्मर के दृष्टिकोण से जब एक रेडियो के माध्यम से अपनी नजर से हम उसे देखते हैं, तो ये पता चलता है कि ये आपातकालीन व्यवस्थापन होना उनके लिए उतना ही जरूरी है। अगर देखा जाए तो खेती के बारे में हम देखें तो ये मल्टीप्लाई है। हम एक दाना बोएंगे और कई निसर्ग हमें देता है, बट ये कब डिवाइडेड होके हमारे पास जीरो आता है ये किसान भाइयों को भी नहीं पता चलता, और फिर बड़ा नुकसान उन्हें फेस करना पड़ता है। और इसी के लिए अपने रेडियो के माध्यम से हमेशा अलग अलग प्रोग्राम्स देने की कोशिश हमने की है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अगर हम सोचे तो अक्सर ये देखा जाता है कि अचानक से होने वाली ज्यादा बारिश, जहां बहुत बड़ा नुकसान फार्मर्स का हो रहा है, जिस इलाके से हम हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हम हैं, वहाँ पोमीग्रेनेट है, वहाँ अमरूद हमारी स्पेशलिटी है। आप में से कई लोग शिरडी आए हो और आपने देखा है कि अमरूद की खेती बहुत ज्यादा वहाँ होती है। इसी तरीके अंगूर की खेती भी वहाँ ज्यादा है। अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट का, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कुछ एरिया ऐसा है और कुछ है जहाँ बारिश ही होती नहीं, बट जहाँ अपनी अच्छी खेती फसल सबको दिख रही है और अचानक से रातों रात इतनी जोरों की बारिश हो जाती है, और सुबह जब किसान देखे तो उसे दिखता है कि जो कल वो एक जजमेंट कर रहा था कि मेरा इस खेत में अब की बार 7 से 8 लाख का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, और अगर वो सुबह उठता है तो उसे दिखता है कि पूरा ओवरफ्लो के कारण, ज्यादा बारिश होने के कारण अपना खेत प्लेन हुआ है। कई बार आपने ये वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखे हैं कि अपने खेती में ये सब देख के वो खुद वायबल हो जाता है। इसीलिए
कई बार फार्मर्स को कुछ गलत डिसीजन भी ये लोग ले लेते हैं और इसीलिए कम्युनिटी रेडियो सबको सस्टेन करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कुछ अलग अलग प्लान्स हमेशा करते आ रहा है। रोग पूर्वानुमान हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हमने लगाया है, स्वयंचलित भी यंत्र यहाँ लगाया गया है ताकि आने वाले 8-10 दिन के लिए जो बिफोर अलर्ट है वो इस माध्यम से हम दे सके। लास्ट 2 इयर्स अगर हम जरा पीछे जाके देखें तो ये ऐसा सबने देखा है कि महाराष्ट्र में खासकर अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा बारिश और साथ में ही बर्फ, तो खेती का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए रेडियो उनके साथ हमेशा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके पंचायत तक, गांव के सेतु कार्यालय से लेके हम उन्हें कैसे हेल्प दे सकते हैं, अभी किस तरीके का उन्हें आगे अपना काम करना है, इसका अलर्ट फॉर्म फिलअप करना है। आपको जो अलग अलग सहायता मिलेगी उसके लिए जो कंडीशंस है, इन सभी बातों का अवेयरनेस कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसी बात है कि हम कितना भी प्री प्लान क्यों न रहे, बट एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि जो नहीं सोचा था उससे भी कुछ अलग हो जाता है। इसका एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल, लाइक कोविड आएगा और पूरे जग में लॉकडाउन हो जाएगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था, पर वो समय हम सब ने फेस किया है, हम सब क्वारंटाइन रहे हैं, बस ऐसा ही है। और ये जो पर्यावरण इतना बदल रहा है, इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। इसके लिए अवेयरनेस भी कम्युनिटी रेडियो से हम देते हैं कि अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए, अपने हव्यास के कारण ये सब गलतियां बाय मिस्टेकली हमने ही की है और इसीलिए इस पर्यावरण का इस रूप से सामना करने की बारी हम सबके साथ है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये जो आपातकालीन व्यवस्थापन है उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स तो रेडियो चलाता है, बट साथ में ये अवेयरनेस देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार भी हम खुद हैं और इसी के लिए अलग अलग टाइप्स के अवेयरनेस प्रोग्राम रेडियो से हम चलाते हैं और किस तरीके से किसानों को सहायता मिले इसके लिए भी स्पेशल प्रोग्राम्स, फिर कृषि अधिकारी है, जो शासन की विविध योजनाएं हैं और किस तरीके से इनका लाभ इन किसान भाइयों को मिले, इसके लिए रेडियो हमेशा बंधनकारक रहा है। ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जैसे बाय मिस्टेक मैडम ने कहा कि MP KV महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ बिल्कुल पास में है, हमारा भी कृषि विज्ञान केंद्र है और अपने जो सब साइंटिस्ट है उनकी मदद से उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हम हमेशा देते रहे हैं। पंजाब राव डक आपने सुना होगा, जिनकी वीडियो बाइट्स, उनके वॉइस काफी वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, जो हमें ये बिफोर परफेक्ट अलर्ट बताते हैं, तो उनको भी कवर करने का काम हमेशा रेडियो ने किया है। रोग पूर्वानुमान का जो आधार जो हमारे पास है उस हिसाब से बिफोर मैसेजिंग हम शुरू कर देते हैं। अगर किसी के खेत का अनाज निकल पड़ा है और आने वाले 2 दिनों में ज्यादा बारिश होने का है, अलर्ट भी हमें मिल गया है, तो किस तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए, अपने खेती के लिए हम बिफोर अलर्ट कर सकते हैं, इसके लिए रेडियो हमेशा सतर्क है और किसानों के सहभाग से ये सारे प्रोग्राम्स करने के लिए हम हमेशा तत्पर है। अंत में मैं सभी से इतना ही कहूंगी कि हम सब एक कम्युनिटी रेडियो के एक आवाज के माध्यम के रूप में सबके साथ रोज मिलते हैं आवाज के रूप में। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि ये जो बदलाव है इसके जिम्मेदार भी हम हैं। जैसे आपातकालीन व्यवस्थापन है, उसी तरीके से अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात हो तो जंगल वाले शेर अब हमारे आंगन में आने लगे और अगर शेर किसी इंसान को पकड़ ले तो वो उनको सजा नहीं है, पर अगर हम अपने बचाव के लिए उन पर कोई एक्शन ले तो हमारे लिए कायदा कानून है। और ये सब क्यों हुआ है, इसका आंसर अगर हम सोचने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा। इस सभी बदलते पर्यावरण के असंतुलन की कहीं ना कहीं हमने गलती की है, तब जाके हम इसे आज फेस कर रहे हैं। और ये पर्यावरण सही रूप से हमारे अगली पीढ़ी के पास देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद कहूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू गायत्री जी। निश्चित ही आपका इनिशिएटिव
ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारे किसान भाइयों के बीच एक सराहनीय कार्य कर रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। एंड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर क्लाइमेट चेंज इज एन ओनस दैट लाइज अपॉन ऑल ऑफ अस। और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया है, वी ऑल नीड टू अडेप्ट अ लाइफस्टाइल दैट इज इको फ्रेंडली एंड प्रो एनवायरनमेंट। गायत्री जी द्वारा उठाए गए विषयों को और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और गहराई से समझने के लिए मैं अब श्री एन ए शाह अंसारी जी के पास जाऊंगा, जो हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हैं। और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनके क्षेत्र के सबसे प्रेसिंग इश्यूज क्या हैं, सबसे बड़ी पर्यावरण संबंधित चिंता के क्या विषय हैं और उनको एड्रेस करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे यंग ब्रॉडकास्टर्स, सीनियर ब्रॉडकास्टर्स हैं, अदर सीनियर पर्सनालिटी हैं। तो जो मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं उसके पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं इसी जगह से आया हूँ और उस रेडियो के साथ जुड़ा हूँ जिसका टावर 3 बार डिजास्टर यानी सुपर साइक्लोन के बाद हर साल कुछ ना कुछ डिजास्टर आता है। फाइलिन, फनी और तितली में 3 बार टावर टूटा है। तो ज़्यादा अनुभव हमारा है कि रेडियो को लेके लोगों के साथ जोड़ना, लोगों का बात रेडियो में बोलना, रेडियो लोगों का रेडियो बनाना, कम्युनिटी रेडियो को, ये तजुर्बा तो हमारा है। और पहले सर जी बोल रहे थे, गायत्री भी उसमें ऐड किए कि एक अभी सोच है कि आजकल रेडियो कौन सुनता है, थोड़ा भरोसा कमता है। लेकिन हिंदुस्तान में 530 से ज़्यादा कम्युनिटी रेडियो फंक्शनल हो चुका है। और जब आंकड़ा देखें, उसका कैलकुलेशन करें तो हिंदुस्तान का 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन को कम्युनिटी रेडियो कैटर कर रहा है। और इतना काम हो रहा है कि कोई जाके कोई कम्युनिटी रेडियो के पास पहुँचे तब उसको भरोसा होगा। लेकिन हम तो उस टाइप के एक ज़माने में, एक टाइम में चल रहे हैं जहाँ आप लाख रुपए का हेल्थ फी यानी मेडिकल में जब पेमेंट करने के बाद भी जब आप उसके स्टोर को आएंगे तो उसका जो कैंची है ना वो सूता में बांधा होगा, क्योंकि भरोसा नहीं है आप ले जाएंगे कभी। बैंक में आपका करोड़ रुपया हो, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे उसका पेन बांधा होगा एक सूते में। लेकिन आप उसके पास करोड़ रखे हो, वो आपके ऊपर, मतलब आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, लेकिन वो 1-2 रुपये के पेन के लिए आपको भरोसा नहीं करता। आप फर्स्ट क्लास एसी में जाओ, लेकिन लोटा तो चेन में बंधा होगा। तो जब इतना हो सकता है, हम पर लोग इतना जल्दी भरोसा कैसे करेंगे? तो हमको खुद वो लाइक और थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि एक देश का 1.5 बिलियन में पहुंच चुके हैं हम और 10% से ज़्यादा कैटर कर रहे हैं पॉपुलेशन, तब भी हम सोच रहे हैं कि लोग क्यों हम पर भरोसा इतना नहीं करते जितना करना चाहिए। दोस्तों, हम इस इलाके में रहते हैं, मतलब एक पूरा समुद्र से 1 किलोमीटर के अंदर हमारा रेडियो है। और हम जितना एरिया कैटर करते हैं, कवरेज करते हैं, वो सभी साइक्लोन हर साल 2-2 बार में और अक्टूबर में बाढ़ के तरह साइक्लोन तो आएगा ही आएगा, उसको हम फेस करते हैं। लेकिन उसको फेस करते हैं वो एक अलग मसला है, और क्लाइमेट चेंज के जरिए क्या हो रहा है वो एक अलग मसला है। अभी सी इरोशन इतना हो रहा है कि हमारे एरिया में 5 गांव है, जो गांव लास्ट 35-40 ईयर्स 35-40 साल के अंदर 3 बार डिस्प्लेस्ड हो चुका है। मतलब उनका ओरिजिनल गांव जहां था वो जगह अभी समुद्र के 5 किलोमीटर के अंदर है। कैन यू थिंक कि एक पैच का समुद्र जब 5 किलोमीटर आगे बढ़ सकता है, वहाँ का हैबिटेशन कहाँ गया, वहाँ का प्रैक्टिस मतलब लाइवलीहुड प्रैक्टिस कहाँ गया, उनका घर दरवाजा सभी चला गया। और आज जो 80-90 साल के बंदे हैं, उनको जब पूछोगे तुम्हारा गांव कहाँ था ना, वो जो 12 नंबर लहर है ना, सी वेव्स, वहाँ हमारा स्कूल था। उसके बाद तो दिखता नहीं है कहाँ था घर। इट ऑल हैपेंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। वहाँ अभी 2-3 बात तो कम्युनिटी रेडियो वाले कर ही रहे हैं। हम जब डिजास्टर आता है, कोई साइक्लोन आता है, प्री साइक्लोनिक वार्निंग, वेदर वार्निंग ये करते हैं, ड्यूरिंग डिजास्टर काम भी करते हैं, पोस्ट डिजास्टर क्या होता है उसको भी करते हैं। और आजकल जो
रिलीफ रिहैबिलिटेशन कोड रूल रेगुलेशन एंटाइटलमेंट्स जो आता है उसका भी प्रोपागेशन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आपका राइट्स क्या है, एंटाइटलमेंट्स क्या है, आपको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी बात है, वो है कि वही डिजास्टर प्रोन एरिया में हम क्या कर सकते हैं। सर पहले बोले कि हम नेचुरल फार्मिंग का बात वहाँ करते हैं, वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात करते हैं। लोगों का डे टू डे जो प्रैक्टिस चेंज हो चुका है वो प्रैक्टिस को और थोड़ा न्यूट्रल करने के लिए, ऑर्गेनिक करने के लिए वो कोशिश भी करते हैं, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में बिहेवियरल चेंज का बात कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा चीज़ है जिसमें हमको और थोड़ा सोच लाना चाहिए। हमारे कवरेज एरिया में 3 गांव है, जो गांव में आज के दिन में भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और हर दिन सुबह 7 बजे या 6 बजे के अंदर ईच एंड एवरी फैमिली इज बाउंड टू गो 10-15 किलोमीटर्स, 10-15 किलोमीटर सुबह सुबह उनको जाना पड़ता है पीने का पानी लाने के लिए दूसरे गांव से। और जब कोई दिन कोई बिरादर पहुंच गया, गेस्ट पहुंच गया घर में, पानी नहीं है तो उसको उधार लेना पड़ता है पड़ोस से। और सबसे बड़ी बात है कि वो गांव में कोई बेटी शादी करने के लिए पसंद नहीं करती। जब आपका बेटा है, आपको बहू लाना है, तो आपको 5-10 किलोमीटर के दूसरे गांव में एक घर बनाना होगा, उसको दिखाना होगा कि तुम्हारी बेटी आने के बाद यहीं रहेगी, वो गांव में नहीं। हालत यहाँ पहुँच चुका है, इट्स ऑल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और वो जो इलाका है, वो इलाके में ये 99 सुपर साइक्लोन में हमको थोड़ा लगा कि साइक्लोन कुछ हुआ, लेकिन उसके पहले भी साइक्लोन हो रहा था। और 70s में अबाउट 72-73 में एक बड़ा साइक्लोन हुआ था, जहाँ की बहुत सारा हैबिटेशन खत्म हो चुका है। और अभी वो गांव रेवेन्यू गांव है, वो गांव में ना पेड़ है, ना पौधा है, ना लोग हैं, कुछ है, उसको बेछापुरी मौजा बोलते हैं, मतलब कोई नहीं है वो गाँव में। तो फिलहाल 6 महीने से हम 2 गांव को अडॉप्ट किए हैं, और थैंक्स टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हम उसको थोड़ा रिवाइव कर रहे हैं। वो गांव वहाँ थोड़ा ग्रीनी बनाए, वो गांव को, वो गांव का नेचुरल हिस्ट्री क्या था उसको अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, और वो गांव को फिर एक उसी टाइप का गांव करने का सोच रहे हैं। और जो लैंडलेस फैमिली को वसुंधरा योजना में जो 8 डिसमिल का लैंड गवर्नमेंट देता है, हम सोचते हैं कि और जो गांव में जो लैंडलेस हैं, जो लैंड के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं, उनको लाके वहाँ बसा जाए, ताकि फिर से वो गांव उसको बेछापुरी मौजा नहीं बोल के वो गांव ओरिजिनली एक गांव बने। तो अभी बात ये है कि ये कम्युनिटी रेडियो वालों का सोच है, हम इस पे काम करते हैं, बिहेवियरल चेंज करते हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात बोलते हैं, ये तो सब सही है। लेकिन उसके अपोजिट में भी कुछ चीज़ है जिसको करना चाहिए, जो करना चाहिए वो अब तक वो तरह का मतलब प्रोसेस शुरू नहीं किए हैं। जैसा कि आप जब देखेंगे, हम वेस्ट बंगाल से लेके अप टू गुजरात, हम एक बीच में स्टडी किए थे, कुछ दोस्त यहाँ हैं वो साथ थे हमारे, कि अबाउट 33 कम्युनिटी रेडियो हैं जो कि 20 से 30 किलोमीटर के अंदर हैं। ऑल आर वर्नरेबल, मतलब जब भी कोई साइक्लोन आया, स्टॉर्म आया, तो पहले उनको हिट होगा, उनका टावर टूटेगा। और जिसका टावर टूटेगा पता है, जिसका छत उड़ेगा पता है उसको, तो साइक्लोन के टाइम में वो दूसरों को सर्विस कैसा देगा? उसके जो टीम सेफ नहीं है, अनसेफ है, वो सेफ्टी का बात कैसा बोलेगा? तो एक मेजर रोल प्ले अभी करना चाहिए गवर्नमेंट या डिजास्टर अथॉरिटी जो भी हैं, कि वो रेडियो को अडॉप्ट करके, एक में उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए, 2 में उनको एक सेफ सेंटर बनाना चाहिए कि कम से कम जितना साइक्लोन आए वो एक सेफ रहेंगे। अभी इमरजेंसी ग्रांट में कुछ रेडियो का टावर बना है, तो उस तरह कुछ इमरजेंसी हो, उनका टावर टूटे, उसके बाद हम उनको सपोर्ट करें। ये ना हो के 20 से 30-35 किलोमीटर के अंदर जो कम्युनिटी रेडियो हैं, हम उनको डिजास्टर के साथ लड़ने के तरह एक लायक कम्युनिटी रेडियो बनाना चाहिए। उसमें हो सकता है हम स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन अथॉरिटी को जोड़ सकते हैं, एनडीए में जुड़ सकता है, यूएन एजेंसीज भी या गवर्नमेंट, हम उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है उसको हम रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन एक लंबे समय तक उसको कैसा फेस करें उस पर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए जब हम कम्युनिटी रेडियो को भरोसा करना चाहिए, और फिर मैं जाता हूँ, भरोसा करना चाहिए, और वो जो कम्युनिटी रेडियो है डिजास्टर प्रोन एरिया में, उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। इन अपोजिट साइड हम अभी कैपेसिटी बिल्डिंग डिफरेंट
वे में करते हैं, डिफरेंट थीमेटिक एरिया में करते हैं। लेकिन जो रेडियो को हम सोचते हैं कि रेडियो इज यूजफुल, मतलब साइक्लोन को, क्लाइमेट चेंज को उसको फेस करने के लिए एलिजिबल है, उसका टीम कितने कैपेबल है, कितना कैपेसिटी बिल्डिंग हम वो टीम का किए हैं कि ड्यूरिंग साइक्लोन, ड्यूरिंग डिजास्टर्स, ड्यूरिंग एनी क्लाइमेट चेंज इश्यूज और हेल्थ इमरजेंसीज लाइक कोविड, उस टाइम में वो जो रेडियो ऑपरेटर्स हैं, कम्युनिटी रेडियो ऑपरेटर्स हैं, वो उसको फेस कर पाएँ, उसका कंटेंट, उसका ऑपरेशन, उसका मैनेजमेंट कैसा करें, उस पर हम उनको उसा लायक बनाए हैं क्या नहीं, उस पर भी काम करना चाहिए। तो दो चीज़ यहाँ हैं दोस्तों, एक है कि हम सब दिन ब्रॉडकास्ट करते हैं, हमको पता है हमको क्या ब्रॉडकास्ट करना है, हमको थोड़ा तरीका बदलना है, हमको थोड़ा टाइम के साथ सोच बदलना है, और हमारा जो ब्रॉडकास्ट है उसको थोड़ा इफेक्टिव, प्रो पीपुल और कम्युनिटी का एंगेजमेंट को बढ़ाना है। दूसरे साइड में जो स्टेक होल्डर्स हैं, हु दे आर प्रमोटिंग अस, प्रमोटिंग कम्युनिटी रेडियोज, दे शुड कैपेसिटेट द CR broadcasters, and also they should make the CRs safe if they are established in the flow cyclonic or flow disaster area. Thank you. थैंक यू अंसारी साहब। मैं आपका आभारी हूं कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों की, किसानों की पर्यावरण संबंधित समस्याओं को इतने विस्तार से हमसे बताया, और आपकी बातें सुन के ना मुझे सिर्फ आश्चर्य होता है बल्कि दुख भी होता है कि ये बातें सरल तरीके से हमारे बीच आपने रखी हैं, पर ये हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। हम तक अक्सर ये बातें, ये समस्याएं, ये कैलेमिटीज बस एक फैक्ट्स और फिगर्स के रूप में ही पहुंच पाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में कि दिल्ली जैसी जगहों में, मेट्रो सिटीज में भी इन विषयों को लगातार उठाया जाए और हमें उनसे वाकिफ कराया जाए। इसलिए मैं अब जाऊंगा हमारे साथ रेड एफएम से जुड़े आरजे पूरब के पास और उनसे समझूंगा कि अर्बन सेंटर्स में इन इश्यूज को उठाना कितना इंपॉर्टेंट है, what are the steps that they have been taking and how they have been trying to communicate the rural issues to a primarily urban audience. Paul, thank you so much. Good morning, नमस्कार। और मैं सबको सुन रहा था एक एक करके, मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो सर को शायद मैं मिस कर गया था। शुरुआत आपसे हुई होगी मेरे ख्याल से। और मैं रेड एफएम के साथ पिछले 2009 से हूँ और पहले मैं कानपुर में था। कानपुर में मैंने रेड एफएम के साथ शो शुरू किया था। अब दिल्ली में मॉर्निंग नंबर 1 शो कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे शुरू होता है शो। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं लेट हो गया, उसकी वजह भी रेडियो और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक ऐसा कॉल आपको आ जाना जिसपे आपका सारा फैब्रिक, सारा चीज़ें अचानक से चेंज हो जाना। मेरे पास एक 9 बजे आज सुबह कॉल आता है और उनका कहना था कि गाजियाबाद में काली माता मंदिर के पास कोई वॉशरूम है जो बड़े दिनों से ख़राब है, महिलाओं को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं वही चीज़ नोटिस कर रहा था सर की बातों के साथ भी कि जब भी आपके हाथ में माइक आता है, चाहे वो कोई भी मंच हो, बड़ा मंच हो, छोटा मंच हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ जाती है। अगर आप ये माइक हटा देंगे तो शायद आप कुछ भी बातें बोल सकते हैं, बट जब माइक या कैमरा आपके सामने होता है तो जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ जाती हैं, आपके तरफ लोग देख रहे होते हैं बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो ये सफ़र 2009 में शुरू हुआ था रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और बाद में मुझे पता चला कि रेडियो एक ऐसी चीज़ है कि सिर्फ गाने नहीं सुनाता है। वो हम लोग के दिमाग में रहता है कि रेडियो में काम करते हो, अच्छा ठीक है गाने सुनाते होगे, मस्ती मजे करते होगे, बट नहीं, आप कब तक गाने सुनाओगे? कुछ तो ऐसा करना होगा कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, कुछ तो, क्योंकि लोग आपको इस तरीके से देखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि जो आज का मुद्दा है क्लाइमेट को लेकर, बहुत सारी चीज़ें कई बार हम बच्चों को समझाते हैं तो बड़ी बड़ी पीपीटीज, बड़े बड़े एजेंडा सुन के वो घबरा जाते हैं कि यार ये तो 100 साल बाद की बात कर रहे हैं, हम तो आज के हिसाब से रह लें, बाद में देखा जाएगा। तो हमारा काम वहाँ पर ये होता है कि कोई भी, पहली बात तो रेडियो सुबह उठ के ऐसे नहीं सुनता है कि चलो जी 8 बज गए अब रेडियो सुनते हैं क्या आ रहा है रेडियो पे, या एकदम पूरा फैमिली बैठकर एक साथ ये नहीं करती है प्लान की चलो 8:30 बज गए अभी देखते हैं क्या हो रहा है रेडियो पे। रेडियो एक ऐसी चीज़ है कि आपको एंटरटेन भी करना है, प्लस आपको उस शहर की जहां तक भी आपकी आवाज़ जा रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। क्योंकि आप जब नंबर बोलते हैं ना रेडियो पे कि इस नंबर पे कॉल कीजिए, आज का मुद्दा है ये, अब किसी कोने में हो सकता है कि कोई दिल टूटा इंसान बैठा हो, वो भी आपको कॉल कर दे। आप क्लाइमेट पे बात कर रहे हो मगर वो परेशान है किसी और चीज़ को लेकर, वो मोहब्बत को लेकर परेशान है कुछ और। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन
आपके सामने वो सारे टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हो और लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो आपके पास वो जवाब होने चाहिए। जैसे मैंने सुबह का आज एग्जांपल दिया कि आज उनका वॉशरूम शायद नहीं चल रहा था जो लोकल एरिया का है, फिर वहाँ पे नगर निगम अथॉरिटी को फ़ोन किया तो उनका कहना था नहीं हम 11 बजे से पहले उसको ठीक कर देंगे। अब ये हमारा काम होता है कि 11 बजे तक वो नहीं ठीक होता है तो वापस से मेरा काम है कि कल उनको फ़ोन किया जाए कि सर हुआ कि नहीं हुआ, प्लस हमें 2 गाने भी सुनाने कि आने वाला गाना ही सुनिए। तो इतना लाइट मूड करके और वो चीज़ें जो कि बहुत गंभीर मुद्दे हैं, चाहे वो महिला की बात हो किसी की या किसी शहर के ट्रैफिक की बात हो। अब सीधा हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि जो यहाँ आज जिसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं उसको लेकर मुझे याद है कि नाम एक बहुत बड़ी चीज होती है कि सबसे पहला रेडियो पे अगर कोई चीज सुनाई देती है तो नाम होता है। नाम एक ऐसी क्रिएटिव चीज होनी चाहिए जो आदमी सुन के कहे कि ये क्या हो रहा है। तो इस कैंपेन को लेकर इस साल की अगर मैं बात करूं तो हमने 2 एक ऐसे कैंपेन किए जहां पर आपको मैं बताऊं कि राजस्थान की गर्मी बहुत ज्यादा फेमस है, हर एक ने सुना है राजस्थान की गर्मी को लेकर। तो वहां पर एक कैंपेन शुरू हुआ था जिसका नाम था जंगल राज। उस जंगल राज में हमने कैंपेन किया था जिसमें हम सारे आरजेज ने मिलकर लोगों को एक नंबर दिया था और उनसे बोला था कि आप हमें इस नंबर पे सिर्फ मिस कॉल दीजिए, आपको कुछ और नहीं करना है। हर एक मिस कॉल पे हम 10 पेड़ लगाएंगे, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। एक सुबह उठना है, आप कहीं पे भी हो, आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एक मिस कॉल देनी है, हम 10 पेड़ लगाएंगे। हमने लोकल एनजीओ से बात करी, बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारी कम्युनिटी से बात करी, स्टूडेंट से बात करी, स्कूल में गए इस कैंपेन को लेकर और लोग हमारे साथ तैयार हुए। और उसके बाद ये कैंपेन के खत्म होते होते कई इलाकों में हमने 6 लाख से ज्यादा पेड़ वहां पर लगाए। एक कैंपेन आपका ये हुआ, इसमें हम सबकी मेहनत थी, लोगों की मेहनत थी, एनजीओ की मेहनत थी और हमें माइक हाथ में आते ही ना हमें लोगों का सपोर्ट, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मैं मालूम है। अगर मैं रेड एफएम पे बोल दूं कि कल सुबह मैं निकलूंगा और मैं शौचालय वो ठीक करा दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं कर सकता मैं। अगर वो मुझे कॉल ना आता उस इंसान का, अगर मैंने वो नंबर ट्रैफिक मंगवाने के लिए ना बोला होता, अगर मैंने कोई और चीज़ ना बोली होती, अगर वो शुरुआत नहीं करता, शुरुआत आम जनता से ही होती है, लोगों से ही होती है कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं। अगर मैं नंबर बोलूं, ट्रैफिक बताने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें जाहिर सी बात है आवाज़ पहुंचाने का जरिया हमारे हाथ में, वो माइक हमारे हाथ में, जिससे हम सब मेरे ख्याल से अपनी अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं लोगों तक। एक हमने मुद्दा ये किया, दूसरे की मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक सेकेंड आपको बताऊंगा, जिसमें हम लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया था, आम हम सभी को पसंद है और गुठलियां, हम एक पुरानी कहावत है कि आम खाओ गुठलियों में क्या रखा है, लेकिन हमने गुठलियों में ही रखा है वो निकालने की कोशिश करी और गुठली रिटर्न करके एक हमने कैंपेन शुरू किया। जो कि उस कैंपेन का मुद्दा ये था कि हमें बाद में पता चला कि जो आम की गुठली है उससे भी हम पेड़ का रूप, एक पौधे का रूप दे सकते हैं और ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं। अक्सर हमारे घर में आम आते हैं, हमने आम का स्वाद लिया और गुठली हम फेंक देते हैं, बट हमें किसानों के थ्रू ये पता चला कि इस गुठली का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप हमें गुठली ला के देंगे तो हम उसे पेड़ में कन्वर्ट कर देंगे। अब पहली बात है, आपको किसी एनजीओ के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी लोगों से बजट की अपील करने की जरूरत नहीं है। आम का सीजन चल रहा है, हर एक के घर में आम होंगे, आपके अंकुर भाई आपने भी आम अच्छा खासे खाए होंगे, हम सब ने आम खाए हैं। हमने लोगों से गुठलियां मांगना शुरू करी कि उसका एक तरीका बताया हमने अपने सोशल मीडिया के जरिए कि आप ये नहीं कि आपने आम खाया और गुठली दे दी, उसका एक तरीका था, उसको साफ सुथरा करके आप हम तक कैसे पहुंचाएं। वो पूरा तरीका बताने के बाद हमने शहर के अलग अलग इलाकों में कई जगह कैंटर्स भिजवाए, कैंपेन शुरू किए, उन आरजेस को कैंटर्स के ऊपर खड़ा किया, लोगों से अपील करी, वो पूरा प्रोसेस बताया और एक नहीं दो नहीं, यकीन मानिए हमने इस तरीके से करके 10 लाख से ज्यादा सूखी आम की गुठलियां रेड एफएम के माध्यम से हमने जो है इकट्ठा करी। और ये नंबर्स इतने बड़े थे कि आपने आम 10 लाख भले ही देखे हो, लेकिन आपके सामने 10 लाख सूखी गुठलियां पड़ी हुई हैं और वो गुठलियां उन किसानों को पहुंचाई गई जिन्होंने ये बोला कि हम इन गुठलियों को पेड़ में कन्वर्ट करेंगे। और आई होप कि अब हम बात करें, इसी साल का एक कैंपेन है, उनमें से मेरे ख्याल से तना अभी तक शायद निकल भी आया होगा और जो है अच्छे खासे कुछ टाइम पे हमें वो 10 लाख से ज़्यादा पेड़ दिखाई देंगे। ये 2 कैंपेन हमने इस साल किए और मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा मामला पॉलिटिकल हो जाएगा तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, बट एक कैंपेन मैंने कानपुर में किया था जिसमें उस टाइम के, मैं साल भी नहीं बताऊंगा नहीं तो आप गेस कर लोगे, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक जगह पर आना था और आईआईटी कानपुर उन्होंने आना था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, और आईआईटी कानपुर में समहाउ उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता था, पता नहीं क्यों। तो उन्होंने पास की एक सोसाइटी को प्लान किया कि उनका हेलीकॉप्टर, उनकी टीम ने प्लान किया कि ये हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड करेगा। और अब यकीन नहीं मानोगे,
25 से 30 साल, 35 साल, 40 साल पुराने पेड़ उस सोसाइटी के सामने एक बड़ा सा पार्क हुआ करता था। पार्क अभी भी है बट वो पेड़ नहीं है। उस हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए, जहां से आईआईटी महज 10 से 15 मिनट की दूरी पे था, वहां पे हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए उन्होंने उन 30 से 35 पेड़ों को काट दिया तने से। और हमें एक सोसाइटी से कॉल आता है एक बच्चे का कि हम लोग यहाँ पर खेलते थे और गर्मियों का मौसम था उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि वो पार्क हमारा खराब हो गया। तो मुझे लगा कि पार्क खराब हो गया, कुछ हुआ होगा, कोई मुद्दा होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने पेड़ सारे काट दिए। जब मैं वहां पर पहुंचा तो 40 साल पुराना पेड़, आप उसका तना अच्छा खासा समझ सकते होगे कि वो पेड़ क्या होगा। उन्होंने मुझे पहले की पिक्चर्स दिखाई, बाद की पिक्चर्स दिखाई, और देख के बहुत अजीब सा लगा कि क्या इतना जरूरी था कि आजकल हम टेक्निकल की बात करते हैं, टेक्निकल चीजों की बात करते हैं कि हम बड़े एडवांस हो गए, हम ये हो गए। मैंने कहा एक हेलीकॉप्टर सर का 15 मिनट अगर उनको ड्राइव करके जाना है, वहां पे नहीं उतर पाए, कोई और ऐसी जगह नहीं थी। मैंने कहा कोई तो ऐसी जगह होगी, कानपुर में ऐसी बहुत जगह है, मेडिकल कॉलेज है जहां पे आए दिन हेलीकॉप्टर्स आते हैं, बहुत सारी जगह पे। मैंने कहा ऐसी जगहों पे उनको क्या मिला कि उन्होंने 30 पेड़ बिना सोचे कि हेलीकॉप्टर यहां पे लैंड करेगा और यहां से 15 मिनट उनको गाड़ी के थ्रू जाना है। तो मेरे लिए बड़ा अजीब था। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। और वो बच्चे जो वहां पर हमेशा खेलते हैं, उनके लिए बड़ी यादें जुड़ी हैं, जो फैमिली वहां पर रहती है उनकी बड़ी यादें जुड़ी हैं। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम रेडियो पे हैं, हम दुखड़ा सुनाएंगे तो आदमी कहेगा भाई तू गाने सुनाने आया कि टेंशन देने आया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑलरेडी आदमी इंसान टेंशन में, प्रेशर में घर से निकल रहा है, 4 गाने सुन रहा है, गाने सुनने के बाद तो उसका मिशन मैच करके आपस में उसका कॉम्बिनेशन करके बैठाकर हमें वो चीज परोसनी है कि आपको अच्छा भी लगे, आपके मतलब की चीज भी हो जाए और हमारा जो जरिया है वो भी पूरा हो जाए। अब इसके बाद मेरी जिम्मेदारी होती है या तो मैं गुस्सा करूं या फिर मैं उनकी आवाज लेकर जिम्मेदार इंसान के पास पहुंचूं। तो मैं पहुंचता हूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी जो वो होते हैं ना सर, वो आपने भी नोटिस किया होगा, एक कुर्सी होती है, 10 कुर्सियां होंगी, एक कुर्सी होगी जिसमें तौलिया रखा होता है व्हाइट कलर का, वो तौलिए पर ही बैठते हैं। और वो तौलिए पर जो इंसान आके बैठता है तब अगल बगल वाले खड़े होते हैं। अगर आप तौलिया हटा दो तो वो इंसान खड़े नहीं होंगे, उनको लगेगा ही नहीं कि कोई अधिकारी आया। तो मैं समझ नहीं पाया तौलिए का कॉन्सेप्ट क्या है कि तौलिया वाली कुर्सी पे अधिकारी बैठेगा। तो तौलिया वाली कुर्सी मेरे सामने थी, वहां पर एक ऑफिसर बैठे हुए थे। मैंने उनसे एक आम जनता की तरह जाके, अच्छी बात है कि हमारे पास माइक होते हैं, हमारे पास कैमराज होते हैं, मैं उनके पास गया और मैंने बोला सर वो बाहर पेड़ काट दिए गए 30 पेड़, इसमें आपका क्या कहना है। तो बोले काट दिए क्या कर सकते हैं, जो करना है कर लो। तो जो करना है कर लो, वो रिकॉर्ड हो गया मेरे पास। और मैंने अगले दिन जाके, हाँ जी तो उसके बाद जब वो रिकॉर्ड हो गया तो मैंने अगले दिन रेडियो पे चलाया और मैंने भी जनता से ही पूछा। मैंने कहा इन्होंने बोला है कि जो करना है कर लो, हम क्या कर सकते हैं, हम आम आदमी हैं, क्या कर सकते हैं, आप बताइए मुझे कॉल करके क्या कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट में एक चीज बोला, मैंने कहा एक चीज हम कर सकते हैं, आप काटते रहो, हम लगाते रहेंगे। लोगों से हमने अपील करी, ये नंबर है, आप क्या कहना चाहते हो। हमने वीडियो शूट किया, लोगों के घरों में गए, मैंने बोला ये बोला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, आप क्या कहना चाहोगे। एक अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि इन्होंने 30 पेड़ काटे, हम एक और ज्यादा नहीं, हम एक लगा देंगे। और ऐसा एक एक करके कई एनजीओ आए जिन्होंने 1000, एक अकेले बंदे ने 1000 से ज्यादा पेड़ लगाए, कुछ ने 2 लगाए, कुछ ने 3 लगाए, कुछ ने 6 लगाए। ऐसे कर करके पूरे कानपुर के हर कोनों में पेड़ लगाए गए। और मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर आप आवाज रेडियो के माध्यम से उठा रहे हो, आपका कनेक्ट अगर अच्छा है, तो लोगों का जो सपोर्ट मिलता है, वो चाहे ये मुद्दा हो चाहे कोई और मुद्दे हो, रेडियो लोग सुनते थे पहले भी, लोग आज भी सुनते हैं। और रेडियो एक ऐसी चीज है कि रेडियो हमेशा सुनते रहेंगे। Thank you so much. Thank you. Thank you, Purab. You greatly highlighted the significance of people's participation and people's campaign, beginning from what Subhashish had illustrated about translating policy into climate action. So I would like to thank all the panelists. अब हमारा ये पहला सत्र समापन की ओर है। हमारे गेस्ट यहाँ पधार चुके हैं, अब हम इनॉग्रल के लिए प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हमारे और भी कई सेशंस हैं जो इसी तरह के महत्वपूर्ण विषयों को उठाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे कम्युनिटी रेडियो के और भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अन्य विषयों के विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जैसा आरजे पूरब कहते हैं, स्टे ट्यून्ड।